المسلمين بل يستحق كل إكرام وحمد ومجد من قال أنا الطريق والحق والحياة. احباب دانش اور کارواں عمل کے بادشاہ اور ساتھیوں، معزز ججز صاحبان، خدائے رب عزوجلال کے قادر کوی اور قدوس نام میں آپ سب کی سلام کی. اور آج جس خوش عنوان پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے پاکستان عالمی تاریخ اور صحت میں مسیحیوں کی خدمات. اور اپنی تقریر کے پہلا حصہ کو شروع کرتے ہوئے جو کہ پاکستان عالمی میں مسیحیوں کی خدمات کے بارے میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا. آؤ محبت سے سلام کرے انہیں جن کے حصے میں یہ مقام آتا ہے. آؤ محبت سے سلام کرے انہیں جن کے حصے میں یہ مقام آتا ہے. بہت کچھ نصیب ہوتے ہیں وہ جن کا لہو وطن کے کام آتا ہے. اور بہت ہی ساتھیوں، جیسا کہ ہم پہلے تقریر میں سن چکے ہیں کہ لوس نائٹ کا کیوں مسیحوں کے مسیحی بہادر تھے جنہوں نے پاؤنڈ کے محاذ پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرایا اور پھر اسی پرچم کے سائے تلے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی. اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک اور مسیحی بہادر جن کا نام جنرل ایرک میجر جہال، جنہوں نے 1965 کی جنگ میں خوب کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور وہ وائس چیف آف ایئر اسٹاف بھی رہے. 1965 کی جنگ میں ایک موقع ایسا بھی آیا جب جنرل ایرک نے اپنی منصوبہ بندی سے سب کو حیرانگی میں ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ ہم C-130 طیارے کو بمبار طیارے کے طور پر استعمال کریں گے، لیکن یہ ناممکن تھا کیونکہ C-130 طیارہ صرف سامان بردار طیارہ تھا. پر انہوں نے اس منصوبے کو اس قابلیت سے قابل عمل بنایا کہ انہوں نے خود C-130 اڑا کر بمباری سے دشمن کو نیست نابود کر دیا اور جن کی خدمات کے چلتے انہیں حلال جرأت اور حلال امتیاز سے بھی نوازا گیا. اسی طرح معزز ساتھیوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مسیحی بیٹوں کے وہ باکمال اور بے مثال کارنامے صرف پاکستان کی تاریخ میں قلم بند نہیں ہیں بلکہ آج بھی دور حاضر میں جاری اور رونما ہیں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں مسیحی بیٹوں کو جو سر پر کفن باندھے اور سینے پر وہ خنجر کھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان کے قربان ہونے کے بعد اس سرزمین پر گرا ان کے لہو کا ایک ایک قطرہ ان کی حب الوطنی کی بے مثال دے گا. اسی طرح اپنے تقریر کے دوسرا حصہ کو جاری رکھتے ہوئے جو کہ پاکستان تعلیم میں مسیحیوں کی خدمات کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سسٹر ایملی گونسلیس جو کہ کلکتہ کو چھوڑ کر پاکستان ہجرت کرائی اور 1972 سے لے کر 1982 تک سینٹ جوزف کالج کراچی میں بطور پرنسپل خوب خدمات سر انجام دی. انہوں نے اپنی ساری زندگی پاکستانی قوم کے بیٹے اور بیٹیوں کو بلند کرنے میں لگا دی. اسی طرح ایک اور مسیحی استاد جن کا نام اوسولڈ برونو نازرت تھا، وہ ہائی اسکول کے استاد تھے لیکن انہوں نے پاکستان کی تاریخ کی کچھ ایسی نامور شخصیات کو تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کیا. ان کے طلباء میں پاکستان کے گزشتہ وزیر اعظم پرویز مشرف، پاکستان کے گزشتہ وزیر اعظم محمد خان جنیجو اور پاکستان کے گزشتہ چیف آف آرمی اسٹاف جہانگیر کرامت تھے. اور ان کے ساتھ ساتھ بہت سے طلباء جنہوں نے ان سے تعلیم و تربیت کا تحفہ پایا اور بعد ازاں پاکستان کے لیے زبردست خدمات سر انجام دی. اس طرح معزز ساتھیوں، جب ہم دور حاضر پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ پاکستان کے تعلیمی پہلو میں مسیحیوں کی خدمات بھری پڑی ہیں. ایڈورڈ کالج پشاور، کراچی گرامر اسکول، کلیئر کالج فار وومن اور اس کے ساتھ ساتھ کیتھولک ایلیمنٹری اور پرائمری اسکول کی 25 جبکہ کیتھولک سیکنڈری اسکول کی 34 مختلف برانچیں جو ہیں وہ اس وقت بلا تفریق پاکستان کے بیٹے اور بیٹیوں کو اعلیٰ معیار کی تعلیم فراہم کر رہی ہیں. استاد کی عزت میں ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں. معلوم نہیں یہ محبت ہے یا عقیدت، معلوم نہیں یہ محبت ہے یا عقیدت، بیارے دل میں بڑا احترام ہے میرا. اور اسی طرح اپنے تقریر کے تیسرے اور آخری حصے کو جاری رکھتے ہوئے جو کہ پاکستان صحت میں مسیحیوں کی خدمات کے بارے میں ہے. معزز ساتھیوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عزیز مسیح گل جنہوں نے پاکستان کے پہلے اقلیتی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہونے کا حلف اٹھایا اور پاکستان کے طبی شعبے کو خوب فروغ دیا اور ترقی دی. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تاریخ پر ایک نظر دوڑاتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ جب بعد ازاں تقسیم پاک و ہند وہ دور جو
पाकिस्तान के लिए नहायत आजमाइश बना था। उस वक्त मसीही कौम की जानिब से बहुत से मुफ्त मेडिकल कैंप्स का एहतमाम किया गया और उसके साथ एफसी कॉलेज की तरफ से 1960 की दहाई में यूसीएच के नाम से मुस्तकिल अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया, जहां बहुत से महाजरीन को मुफ्त खाना, मुफ्त पानी और मुफ्त मेडिकल सहूलियात फराहम करके उनकी खिदमत की गई। इसके साथ साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जरूर है हम इस बात से आशना हो, इस वक्त पाकिस्तानी कौम की बहुत सी मसीह बेटियां और बेटे जो हर किस्म के खौफ से मुबर्रा होकर इस वक्त अपने वतन और कौम की खिदमत कर रहे हैं और इस खिदमत के हिस्सा में ऐसे तजुर्बाकार डॉक्टर्स और नर्सेज भी शामिल हैं जो कि बैरून ममालिक से आला मियार की तालीम हासिल करके वहाँ की तमाम तर सहूलियात और सुकून जिंदगी को यकतरफा करते हुए अपने वतन और इसके लोगों की खिदमत में मसरूफ हो गए हैं। एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ आखिर में, हम वो पत्ते नहीं जो शाखों से गिर पड़े, जरा गौर कीजिएगा, हम वो पत्ते नहीं जो शाखों से गिर पड़े, आंधियों से कह दो अपनी औकात में नहीं। हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, लेकिन तुझे जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक, लेकिन तुझे जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। जनाब सदर, मौज़ी मेहमान गिरामी, हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, लेकिन तुझे जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक, लेकिन तुझे जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। जनाब सदर, मौज़ी मेहमान गिरामी और मेरे हम मकतब साथियों, आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। जनाब सदर, आज मुझे जिस मौजू पर लबकशाई का मौका मिला है उसका उन्वान है सेहत, तालीम और पाक फौज में मसीहियों का किरदार। जनाब सदर, रियासत पाकिस्तान के हालात मरूजी में आज जब मैं मुड़ कर देखता हूँ तो इंसानी वफा, मोहब्बत और यगानगत, अजमत और सच्चाई, बढ़ाई और दिदावरी में मेरी कौम, मेरी मसीही कौम का किरदार सबसे उम्मीद नजर आता है। हकूक़ इंसानी के बुनियादी अज्जा सेहत, तालीम और दिफा है। मेरे लिए बताना खुशी और बाइस फख्र है कि मुल्क पाकिस्तान के इन तीनों शोबों में मसीही कौम ने रोशन और निमाया किरदार अदा किया है। सेहत के हवाले से हमारी खिदमत मुल्क खुदादाद के क़याम से पहले शुरू होती हैं और ऐसे इदारों और ऐसे लोगों को जन्म देने वाले लोग आज भी हमारे लिए बाइस फख्र हैं। रफ़ाए आमा के लिए 1860 में किंग एडवर्ड जैसा अदारा क़याम पज़ीर हुआ। मुल्क के तूलो अर्ज में फ्री डिस्पेंसरियां और शिफा खाने मनक़द हुए। डॉक्टर जैक एंडरसन मोबाइल हॉस्पिटल जैसे दारों ने पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों, हैदराबाद और सिंध में मेडिकल सहूलतें मुहैया की। जनाब सदर, डॉक्टर रूथ पॉल ने अपनी सारी जिंदगी जिज़ाम के मरीजों के लिए वक़्फ़ कर दी। हालिया दौर में स्वीडिश पाकिस्तानी नर्स वैनी लकार्दल, जिन्होंने 40 साल पाकिस्तान नर्सिंग में और तालीम के मैदान में काम किया और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 23 मार्च 2021 को सदारती अवार्ड हासिल करके हमारी कौम का नाम रोशन किया। अब कर्ज है हम पर मट्टी का, तकदीर करे तदबीर करे। अब कर्ज है हम पर मट्टी का, तकदीर करे तदबीर करे। इस मंजिल का, इस धरती का, इस मंजिल का, इस धरती का, आओ वतन तामीर करें। जनाब सदर, सेहत के मैदान में आज भी तकरीबन 60 से 70% नर्सिस मसीही तबके से तल्लुक़ रखती हैं और 15 से ज़ायद अस्पताल पाकिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं देखता हूँ 14 जुलाई 2010 को जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची में मकदलीनी अशरफ नाम नर्स को सियासी कर्मचारी बनाकर चौथी मंजिल से फेंक दिया जाता है। जब तबीता नाम नर्स पर तहीने साथ का इल्जाम लगाया जाता है, जब मियां मीर अस्पताल में एक पैरामेडिकल स्टाफ को थप्पड़ सीध किए जाते हैं, ये मुनाज़र में जिस वजह पर वहशतकारी करते हैं और मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर किया जाता है कि क्या आज पाकिस्तान मसीही कौम की खिदमत भूल चुका है? दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत। मेरी मट्टी
जनाब सदर, तालीम के मैदान में भी मसीहियों का किरदार एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तालीम के शोबे में मसीही कौम की खिदमत जीसी कॉलेज और एफसी कॉलेज की शक्ल में सिर्फ फरिश्त है। क्या मैं पाकिस्तान के बाद कायद आज़म ने पारसी और मसीहियों से कहा कि वो अपने स्कूलों और कॉलेजों में मुसलमान बच्चों को दाखिला दे, जो इस बात का सबूत पेश करता है कि तालीम के मैदान में भी मसीहियों का किरदार काबिल फख्र है। आज भी पाकिस्तान में तालीम के फरोग के लिए तकरीबन 100 से ज़्यादा स्कूल और कॉलेज मौजूद हैं, जिनमें एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर, कैथेड्रल स्कूल, कॉन्वेंट जैसे इदारे कायम हैं, जिन्होंने न सिर्फ शहर बल्कि गांव-गांव में भी तालीम को आम किया। बड़े सगीर के मसीही तालीमी अदारों से तालीम याफ्ता होने वालों में हमारे मुल्क के बहुत सारे लीडर शामिल हैं, जिनमें ज़ियाउल हक, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ सिर्फ फरिश्ते हैं। जनाब सदर, मुत्तहिद होकर जिए तो एक ताकत हम भी हैं, मुत्तहिद होकर जिए तो एक ताकत हम भी हैं। गिर सलामत ये वतन है तो सलामत हम भी हैं, गिर सलामत ये वतन है तो सलामत हम भी हैं। जनाब सदर, पाक फौज में मसीही नौजवान के किरदार की मिसाल और कहीं नहीं मिलती। पाक फौज में मसीही नौजवानों ने 7 सितारे जुरत, 3 तमगा जुरत, 9 सितारे मिसाले जैसे एजाज़ात अपने नाम किए। पाक फौज के मेजर जनरल आसफ गफूर ने अपनी जबान से इकरार किया कि 59% गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों ने मुल्क के दफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। बेशक मसीही नौजवानों ने अपने मुल्क की सलामती और बका के लिए अपनी जान तक की भी फिक्र न की। सेकंड लेफ्टिनेंट डैनियल उटेरिट, जिन्होंने 1971 की जंग में शहादत का दर्जा हासिल किया। मेजर सरमद सरोवर शहीद, जो 2007 को नवाज कोट ऑपरेशन में शहीद किए गए, और बेशुमार ऐसे नाम जिन्होंने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तान होने का किरदार निभाया। आज भी पाकिस्तान में पाक फौज में मसीही नौजवान अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटी हुई है महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर, जो डटी हुई है महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। जनाब सदर, मैं एक पाकिस्तानी मसीही हूँ, मेरा दिल अपने वतन की मोहब्बत से लबरेज है। सेहत, तालीम और पाक फौज तो क्या, मैं हर मैदान में अपनी जान का नजराना देने को तैयार हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़मीन से आसमां तक परवाज करता हूँ, ज़मीन से आसमां तक परवाज करता हूँ, कुछ अर्ज करने से पहले सलाम पेश करता हूँ। मेहमान गिरामी, जज साहबान और मेरे हम साथियों, आप सबको मेरा सलाम। जनाब सदर, आज मुझे जिस उन्वान पर लग कुशाई करने का मौका मिला वो है पाकिस्तान आर्मी, तालीम और सेहत के इदारों में मसीहियों का किरदार। जनाब सदर, वतन अजीज पाकिस्तान एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्कत है जहाँ एक अंदाजे के मुताबिक 97 से 98% तक मुस्लिम रहते हैं, और अगर यहाँ गैर मुस्लिमों की बात करें तो हिंदुओं के अलावा मसीही भी लाखों की तादाद में मौजूद है। जनाब सदर, जब हम आर्मी की तारीख से पर्दा उठाते हैं तो हमें पता चलता है कि जब मशरकी पाकिस्तान में हालात खराब हुए तो सेकंड लेफ्टिनेंट दानियाल ने खुद को वॉलंटियर किया। जनाब सदर, 31 दिसंबर को दानियाल एक मिशन से वापस लौटे कि अचानक खबर मिली कि दुश्मन ने 31 पंजाब की प्लाटून पर हमला कर दिया है। जनाब सदर, दानियाल दुश्मन को साथियों को बचाने निकले, दुश्मन के घेरे में आए और सीना गोलियों से छलनी हो जाता है। जनाब सदर, जब ये गोलियां निकाली जाती हैं तो दानियाल फरमाते हैं कि ये मेरी गोलियां नहीं, ये मेरी सवीनियर है, मेरी मां को लुटा देना। न जाने है मेरे देश के शहीद जवान, न जाने है मेरे देश के शहीद जवान, तुम्हें जन्म देने वाली माँ उस रात कैसे सोई होगी। जनाब सदर, क्या मैं पाकिस्तान के 1 साल बाद तकरीबन 45 के करीब पोलैंड के अफसरान पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरबियत के लिए मंगवाएंगे, जिनमें एक विंग कमांडर व्लादिस्लाव और जोसेफ डॉर्ज यहीं रुक गए और पाकिस्तान के शहरी बन गए। जनाब सदर, आज हमें ये जानकर खुशी होती है कि बाद में इनकी खिदमत को सराहते हुए इन्हें तमगा पाकिस्तान, सितारा इम्तियाज, सितारा जुर्रत, सितारा क़ायद आज़म और स्पेस फिजिक्स में ITCP का अवार्ड अता किया गया। अगर कुछ लिखने बैठूं तो बहुत कुछ लिखूं उस ज़ात पर, अगर लिखने बैठूं तो बहुत कुछ लिखूं उस ज़ात पर, जिसे पढ़ने के लिए हर साहिब फहम को बेचैन पाता हूं।
जनाब सदर, जब हम तालीम के मैदान में उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान जिसे आज हम इंग्लिश कहते हैं, इस इंग्लिश को बोलने, सीखने और सीखने वाली सबसे पहले मेरी कौम मसीही कौम थी। तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साजे फितरत में नवा कोई। जनाब सदर, हमारे सियासी लीडर जो फ्रीडम के लिए लड़े, मोस्ट ऑफ देम आर एजुकेटेड फ्रॉम क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट, जिनमें शायर मस्जिद जनाब लामा मोहम्मद शरीफ फरिश्ते हैं, जिन्होंने हमारे कॉलेज सियालकोट से तालीम पाई। इल्म फलक में कहकशाओं में चमकता है, इल्म फलक में कहकशाओं में चमकता है, इल्म करते जो बादलों में तो बरसता है। जनाब सदर, जब हम तारीख के उराग से पर्दा उठाते हैं तो हमें पता चलता है कि डॉक्टर रूथफाउ ने अपनी सारी जिंदगी पाकिस्तान के इलाका बंगोपीर में जिजाम के मरीजों का इलाज करने में गुजारी। जनाब सदर, आज हमें यह जानकर खुशी होती है किसी डॉक्टर रूथफाउ की बदौलत मुल्क पाकिस्तान को 1996 में जिजाम फ्री मुल्क की हैसियत करार दिया गया। जनाब सदर, जिजाम फ्री की हैसियत हासिल करने वाला मुल्क पाकिस्तान मेरा मुल्क पहला मुल्क था एशिया में। मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, ये हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं। जनाब सदर, आज भी जब हम किसी भी अस्पताल में जाते हैं तो हमें 60 से 70% तक क्रिश्चियन नर्सेज नजर आती हैं। जनाब सदर, आज हमें पता चलता है कि पाकिस्तान आर्मी, तालीम और सेहत के इदारों में मसीहियों ने किस तरह अपना किरदार नुमाया किया। क्या खूब है वो कौम जिसने दुनिया को बताया, क्या खूब है वो कौम जिसने दुनिया को बताया, किस तरह गौर फिक्र से बेनाम कौम नाम पा जाती है, किस तरह गौर फिक्र से बेनाम कौम। ना पूछो जमाने से हमारी कहानी क्या है, ना पूछो जमाने से हमारी कहानी क्या है, पहचान तो बस ये है कि हम पाकिस्तानी हैं। सदर ज़ीवकार और मुअज़्ज़िज़ सामीन, आप सबको मेरी तरफ से मसीह में सलाम। पाकिस्तान में शोबा आर्मी, शोबा तालीम और शोबा सेहत में अक़लियतों की खिदमत, ये हमारी आज की तकरीर का उन्वान है। पाकिस्तान की आज़ादी के साथ ही पाकिस्तान में रहने वाली तमाम अक़लियतों ने पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर मैदान में काम किया है और उनमें बहुत से लोग नुमाया मुकाम तक भी पहुँचे हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादातर लोग हिंदू और मसीही थे। सदर ज़ीवकार, मसीहियों की खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए मैं सबसे पहले बात करूंगी उन मसीही फौजी अफसरों की जिन्होंने पाकिस्तान में अपने ओहदे पर फाइज रहकर अहम तरीन कारनामे सरअंजाम दिए हैं। इन फौजी अफसरों में पहला नाम मेजर जनरल जूलियन पीटर का है, जो पाकिस्तान फौज के पहले मसीही मेजर जनरल थे। 1933 में आपने मेजर जनरल के ओहदे पर पहुंचे और फिर यके बाद दीगरे फौजी अफसरान आए जिन्होंने अपनी भरपूर खिदमत मादरे वतन के लिए पेश की। इनमें एयर वाइस मार्शल माइकल जॉन, जो लाहौर के एक मसीही खानदान में पैदा हुए, जो कि 1946 में इंडियन एयर फोर्स में थे। जब तकसीम का ऐलान हुआ तो आपने पाकिस्तानी शोहरियत की दरख्वास्त दी और आज़ादी की जंग में भरपूर हिस्सा लिया। और आपकी खासियत ये थी कि आपने 1947, 65 और 71 की तीनों जंगों में हिस्सा लिया और एयरफोर्स के अंदर ट्रेनिंग के मुख्तलिफ अदारों की बुनियाद रखी। 1969 में आपको एयर वाइस मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई और फिर सीसल चौधरी, जिनका ताल्लुक लाहौर से था, एयरफोर्स के कमांडर थे, जिन्होंने सन 1965 और 1971 की जंग में हिस्सा लिया और गाजी रहे। उन्होंने दुश्मन के मुल्क में जाकर उनको शिकस्त दी और वापस अपने मुल्क में आए। पाक फ़िज़ाइया और पाक बहरिया में अक़लियतों की
जंगों और ऑपरेशंस में अपनी जानों का नजराना पेश किया। किसी शायर ने क्या खूब कहा है हमारी पाक अफवाज के बारे में, सो जाओ अजीजों के फसीलों पे हर एक सिमत, सो जाओ अजीजों के फसीलों पे हर एक सिमत, हम लोग अभी जिंदा हैं, बेदार खड़े हैं। सदर ज़ीवकार क़याम पाकिस्तान के बाद शोबा तालीम में मसीही अदारों का किरदार नुमाया रहा है और मुल्की तालीम और तरक्की में मसीहियों की खिदमत काबिले तहसीन हैं। तालीम के मैदान में मसीही तालीमी अदारों की खिदमत आज भी जारी हैं और उनकी खिदमत को पूरी कौम कदर की निगाह से देखती है। शहर इकबाल के लाखों वासियों को मिशनरी तालीमी अदारों ने ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया है। क़याम पाकिस्तान से कबल ही मिशनरी तालीमी अदारों ने अपना काम शुरू कर दिया था और इन्हीं के तालीमी अदारों में शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल और फैज़ जैसी शख्सियात ने अपनी तालीम हासिल की और तहरीक पाकिस्तान की भागदौड़ में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मसीहियों की जानिब से अब दर्जनों स्कूल और हस्पताल आवाम की खिदमत में दिन रात कोशां हैं। पाकिस्तान में 1956 से लेकर अब तक तकरीबन तमाम वज़ीर आज़म ने अपनी तालीम एक मिशनरी इंस्टीट्यूट से हासिल की। पाकिस्तान के 13 सदर मुमलिकत में से 6 ने इन्हीं मिशनरी स्कूल से तालीम हासिल की। इनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो, परवेज़ मुशर्रफ, परवेज़ रशीद, बेनज़ीर भुट्टो, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और सरदार अयाज सादिक जैसे लोग तैयार किए। मसीही बरादरी के तालीमी अदारों में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मरियम, सेंट पैट्रिक हाई स्कूल, सेंट मेरीज हाई स्कूल और सेंट जॉन कैथीड्रल जैसे क़याम की काविशें हैं। मसीहियों के कायम करदा बहुत सारे स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में से ये चंद जो पिछले 160 साल से पाकिस्तान में कामयाबी के साथ लोगों को तालीम दे रहे हैं। इकबाल ने तालीम के हवाले से क्या खूब कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदाबंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सदर ज़ीवकार शोबा आर्मी और शोबा तालीम के साथ शोबा सेहत में भी मसीहियों का किरदार बड़ा नुमाया रहा है। मसीही कौम के मजहबी रहनुमा डॉक्टर फादर लूक ओपी और एंथनी लोगों ने शोबा सेहत में अपनी खिदमत सरअंजाम दी। शोबा सेहत के हवाले से मिशनरी ने बहुत सारे अस्पताल कायम किए, जिनमें वुमेन क्रिश्चियन हॉस्पिटल मुल्तान, होली फैमिली हॉस्पिटल, मेडिकल मिशन ट्रस्ट हॉस्पिटल और यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल जैसे अस्पताल अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। बहुत सारे मसीही मिशनरी मजहबी रहनुमाओं ने शोबा सेहत में अपनी खिदमत सरअंजाम दी। इनमें सबसे नुमाया किरदार सिस्टर रूथ फाउ का है। 6 दहाइयों कबल पाकिस्तान में जज़ाम या कोढ़ के मरीजों की हालत रगरगू थी। इस बीमारी को लाइलाज और खुदा का अज़ाब समझा जाता था। जज़ाम के मरीजों की अलग बस्तियां आबाद थीं, जहां कोढ़ में मुब्तला हज़ारों मरीज गैर इंसानी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। उनके जिस्म से बहता खून और ज़ख्मों से रस्ती पीप चूहों की ग़िज़ा बनती थी। रूथ फाउ ने जज़ाम के मरीजों की हालत ज़ार देखकर अपनी बकिया तमाम ज़िंदगी धुतकारे और ठुकराए हुए मरीजों का इलाज करने का तहैया किया। जो काम सिस्टर रूथ फाउ ने किया वो काम कोई नहीं कर सकता और ये जज्बा भी किसी किसी में होता है। तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साज़े फितरत में नवा कोई। ये बच्ची है लोधना से मिस सज्जल असलम।
Afaq. Joel Afaq, third position.